Yes. 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 Clear है एकदम? Yes. Yes. Okay. So we proved that PV is equals to 1 by 3 m into n into v bar square, right? Now, Yes. I want to convert this into the form of kinetic energy. So what I can simply go for, what is kinetic energy? Half mv square, right? Half So mv I square. Yes, am going to half mv multiply and square. divide by 2. So this will become 2 by 3 into 1 by 2 m and v bar square. Now, just don't look at this just don't look at this n. What you'll get, PV is equals to 2 by 3, n को थोड़ा सा side में रखो, and what you find that this, it was capital N. Yeah. And what you will find that this half mv bar square is actually your kinetic energy. Right? Yes. 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 Now, this is how you find out that PV is equals to 2 by 3 n of kinetic energy. And I explained you that when I am talking about the ideal gases, there is no interaction between the molecules. So whatever is the kinetic energy is there, that is associating the total energy. आपकी total energy पूरी की पूरी kinetic energy से ही बनी हुई है. उसमें कोई potential energy जैसी चीज नहीं है. When I am talking about ideal gas, keep it in mind. When I am talking about real gas, ये फंडा यहाँ पे follow नहीं होता. Real gas में आपकी potential energy exist करती है. So since we are talking about the ideal gas, we are taking an ideal gas inside the cubical container. So here this kinetic energy will actually associate your what I can say, the total energy of the system. So you know that the total energy of the system is simply the kinetic energy, and kinetic energy का formula भी हमने देखा, it is given by half mv bar square. Now ये एक particle की kinetic energy हो गई. अगर n particles है तो it will be n into half mv bar square. This will give you the total energy of the system, right? अभी हमने ऊपर देखा कि PV is equals to 2 by 3 of E होता है, राइट? ये पूरा मेरा E को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, देखो. Yes. सो थोड़ा सा और आगे जाता है. नाउ अभी हमने पीछे देखा था PV इज इक्वल्स टू n kBT होता है. आदित्य Yes. कुछ समझ में आ रहा है what I'm Yes. saying? Yes. So PV is equals to n kBT and PV is equals to 2 by 3 of E. So it simply becomes n kBT is equals to 2 by 3 of E. So मेरा E क्या हो जाएगा? E will be simply 3 by 2 of kBT. Yes, ma'am. E by n is equals to 3 by 2 of kBT. इसका मतलब है एनर्जी पर मॉलिक्यूल, आपके हर मॉलिक्यूल के पास, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रही हूँ, एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल हैव एटलीस्ट 3 by 2 kBT. और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मोनोएटॉमिक का 3 by 2 हमने अभी प्रूफ किया था जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कर रहे थे. One in the y direction, one in the x direction, and one in the z direction. So half kBT and half kBT. तो एक मॉलिक्यूल के पास टोटल कितनी एनर्जी हो जाती है पर 3 मॉलिक्यूल by के 2 पास? kBT. So that is what it is proving, that it is 3 by 2 kBT. समझ में आया what I'm saying? Yes, ma'am. So is everyone clear with this? Yes, ma'am. किसी Yes, को ma'am. कोई प्रॉब्लम है? No. मैम Yes, बोलो. ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर किया तो वो हर एक 1 by 2 कंट्रीब्यूट करता है, तो वो Yes. टोटल 5 by 2 नहीं आएगा. Exactly 5 by आएगा. That's हाँ, very तो true. मैम डायटोमिक का एनर्जी ज्यादा रहेगा मतलब ना. 5 by 2 है तो आप देख लो. 3 by 2 is 1.5. 5 by 2 is 2.5. Of course डायटोमिक का ज्यादा होगा. यस मैम. Of course अगर तुम इसका जनरल इक्वेशन जाओगे ना लेकर, when you'll go for the general equation of energy per molecule, ये इसका ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है F by 2 kBT, where F is the degree of डिग्री freedom. ऑफ फ्रीडम. यस. Since it was monoatomic, degree of freedom is 3, so it becomes 3 by 2 kBT. So अगर आप जनरल इक्वेशन के लिए जाओगे तो it is actually general equation is E by N is equals to F by 2 kBT, और F is the degree of freedom. आपका मोनोएटॉमिक है तो ऑफ कोर्स इट विल बी 3,
diatomic है तो of course it will be 5. If it is non-rigid diatomic, it will be 6. and so on. 6. समझ में आ रहा है Yes. what I'm saying? Yes. आगे बढ़ो. अदिति तुमको क्लियर हुआ? कोई डाउट क्या? यस मैम. कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मैम, समझा. ठीक है. So let's move ahead with the Peyer's relation, everyone. ठीक है. Diatomic molecule के लिए as I said rigid rotator है तो you will have a 5 degree of freedom, but अगर non rigid rotator है तो you will have a 6 degree of freedom, but आपका 6 degree of freedom 7/2 kbt को रिप्रेजेंट करता है. ये आपको दिमाग में रखना है कि आपका 1 degree of freedom of a डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल वो 2 हाफ केविटीज को कंट्रीब्यूट करता है. ये दिमाग में आपको सेट करके रखना है कि ऐसा होता है. ओके. नॉन रिजिड रोटेटर जब आप पढ़ोगे आपको ये बात क्लियर रखनी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम भले 6 हो इन अ नॉन रिजिड रोटेटर, बट जब मैं केबीटी काउंट करूंगी तो मेरा जो एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो मेरे 2 हाफ केबीटी को कंट्रीब्यूट करेगा. डू यू पीपल रिमेम्बर दिस? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. सो ये फॉर्मूला है ना F/2 kbt, ये इन जनरल इसीलिए नहीं दिया गया आपको क्योंकि ये नॉन रिजिड रोटेटर्स को कंसीडर नहीं किया करता. दे डोंट कंसीडर नॉन रिजिड रोटेटर्स. वहां पर फिर वो 6/2 kbt दे देगा, बट एक्चुअली इट इज नॉट 6/2 kbt. यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट शुड बी 7/2 kbt बिकॉज मेरा एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन वो 2 हाफ केबीटी को कंट्रीब्यूट करता है. होप यू रिमेम्बर दिस. ये बात आपको दिमाग में रखनी है. ठीक है. तो अगर आपको किसी ने पूछा DOF कितना होता है नॉन रिजिड का, यू हैव टू से 6, बट केबीटीज कितने कंट्रीब्यूट हो रहे हैं तो बोलना है कि वो 7/2 kbt. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर केबीटी. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड देन वी विल मूव टू द मेयर्स रिलेशन. मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम बता चुकी हूँ. याद है आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ये कौन सी हीट होती है? Do you The remember? amount of heat required to raise the temperature of unit mass by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius. Specific heat capacity. Yes. So जो टेम्परेचर्स बढ़ाने के लिए जो हीट यूज होता है, 2 टाइप की हीट होती है. जो 11 में नहीं थे मैं उनके लिए रिवाइज कर रही हूँ. 2 टाइप की हीट हम लोग एक्चुअली हीट एक ही होता है बट उसको अलग अलग टाइप में डिफाइन किया गया है. सो एक होता है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट का काम होता है वो क्या करता है? स्टेट चेंज करता है और टेम्परेचर चेंज नहीं करता. इसका ये अगर आपको पता करना है कि लेटेंट हीट है या स्पेसिफिक हीट है, सिंपली ये देखना है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है सिस्टम का और आप हीट दिए जा रहे हो हीट दिए जा रहे हो बट आपको कोई टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो सारा हीट लेटेंट हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है. अगर आप हीट दे रहे हो और टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, इट मींस आप जो भी हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब कर रहा है. स्पेसिफिक हीट वो हीट होता है जो हीट लेने के बाद टेम्परेचर चेंज करता है. जब भी किसी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज होता है, किसी भी एक यूनिट मास, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, किसी भी एक यूनिट मास का टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी भी एक यूनिट मास का, एनी 1 यूनिट मास, किसी भी एक यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. बच्चों समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes. जो 11 में नहीं थे उनको कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिंपली क्या है इतना ही समझो. एक यूनिट मास के लिए, मतलब ये एक यूनिट मास मतलब 1 kg 1 ग्राम, 1 kg मास के लिए आपने एक 1 kg मास एक कंटेनर में रख दिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से आपको चेंज करना है. तो एक यूनिट मास के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो भी हीट लगे दैट इज स्पेसिफिकली और स्पेसिफिक हीट, वही तुम्हारा स्पेसिफिक हीट है. सो सिंपली ये दिमाग में शॉर्टकट में रख सकते हो कि जहां पर भी टेम्परेचर चेंज होगा वहां पर स्पेसिफिक हीट का काम आता है, वहां पर स्पेसिफिक हीट का डिस्कशन होना चाहिए. समझा सबको? क्लियर हुआ? Yes. नाउ स्पेसिफिक हीट 2 टाइप के होते हैं नॉर्मली.
एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स हैं जो आप 11th स्टैंडर्ड की बुक में जाके रीड कर सकते हो. इन अ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज द नेम ऑफ द चैप्टर. आप वहां पे जाओगे तो आपको स्पेसिफिक हीट के टाइप्स दिख जाएंगे. आई वॉन्ट यू टू रीड. अगर आप टाइम निकाल के थोड़ा रीड करोगे तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू. अगर आपको कुछ नहीं समझेगा तो यू कैन कम एंड आस्क टू मी व्हेन आई विल गो अहेड विद द नेक्स्ट लेक्चर. मैं पहले आपको वो समझा दूंगी एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो आई वांट यू टू गो अहेड विद द 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ओपन द स्पेसिफिक हीट पार्ट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट for those people who were in 11th standard, for those people who are not in 11th standard. मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ. आपको ये काम करना है, आपको जाना है, टेक्स्ट बुक ओपन करनी है थर्मल प्रॉपर्टीज की, फिजिक्स की थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे जाना है. वहां पे स्पेसिफिक हीट का पूरा एक कंटेंट है, आपको जस्ट वो रीड करना है. अगर आपको वहां पर कोई डाउट आता है तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो. ओके, सो स्पेसिफिक हीट बेसिकली दो टाइप के होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. हालांकि बहुत सारे टाइप के होते हैं. दैट इज सीपी एंड सीवी. नाउ व्हाट इज सीपी एंड व्हाट इज सीवी? सीपी जो होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट एट व्हाट इट इज constant pressure. Constant pressure. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. और ये क्या होता है? दिस इज constant volume. Specific heat at constant volume. Specific heat at constant volume. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि किसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, सीपी की या सीवी की? CP. सीपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है. तो मैंने आपको रीजन बताया था कि अगर आप दो कंटेनर्स लेते हो, अगर आपने एक कंटेनर लिया और आपने दूसरा कंटेनर लिया, एक कंटेनर को आपने ढक दिया, ये सीवी का कंडीशन हो गया. मतलब आपने किसी तरीके से वॉल्यूम को कंट्रोल कर लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हो. इसमें सिंस जब आप कोई चीज हीट कर रहे हो तो यहाँ पर मटेरियल बाहर की तरफ एवोपरेट हो सकता है, तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है. यहाँ पर आपने किसी तरीके को से प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और आपने दोनों को हीट देना स्टार्ट किया. अब यहाँ पर जब ये आपका सीपी कंडीशन है और ये आपका सीवी कंडीशन है, यहाँ पर जब आप हीट होगे तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट वॉल्यूम एक्सपांड करने में वेस्ट होगा और बाकी के बचे हुए अमाउंट से टेम्परेचर चेंज होगा. यहाँ पर वॉल्यूम का तो कोई फंडा ही नहीं आता क्योंकि आपने वॉल्यूम को किसी तरीके से फिक्स कर दिया है. तो सारा का सारा हीट कहाँ यूज हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने में. सो दैट इज द रीजन कि आपका सीपी का वैल्यू हमेशा सीवी से ज्यादा होता है. मतलब सीपी के हीट का वैल्यू हमेशा सीवी के हीट से ज्यादा होता है, क्योंकि मतलब दोनों को समझो, आपको दोनों को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है. अब यहाँ पे आपने हीट दिया, फटाक से 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि सारा हीट उसने अंदर ही यूज कर लिया. बट यहाँ पर वो चेंज ही नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि उसका कुछ अमाउंट ऑफ हीट वॉल्यूम को एक्सपांड करने में वेस्ट हो रहा है. इसीलिए खाना पकाते वक्त हम खाने को ढक देते हैं कि हमारे कम हीट में खाना आराम से पक जाए, उसका टेम्परेचर आराम से चेंज हो जाए. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. सबको क्लियर है? Yes. ठीक है. Yes, ma'am. Now let's understand about the Mayer's relation. यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूँ. मेयर ने सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन दिया था, and that relation is given by CP minus CV is equals to R. R. Where CP is your specific heat at constant pressure, CV is your specific heat at constant volume, and capital R is the gas Universal constant. gas Gas constant. constant. Gas constant, of course. So let's move ahead with the things. Let us consider a 1 mole of an ideal gas. मैं 1 mole of ideal gas ले रही हूँ. I'm talking about 1 mole of an ideal gas. Okay. Inside a cylindrical container, you can say. एक cylindrical container है, उसके अंदर मैंने 1 mole of ideal gas लिया है, and there is a piston over here. Piston का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका, आपने वो देखी है पिचकारी होती है ना, तो Yes. पिचकारी में जो ये पीछे ऐसे जिससे आप उसको प्रेस करते हो. अब तो न्यू टाइप की पिचकारी आ गई है. पहले अर्लियर एक ऐसे कुछ टाइप की होती थी. तो ये जो पीछे से ये पुश करने वाला पार्ट होता है ना, इसको हम पिस्टन बोलते हैं. समझ में आ रहा है? बड़ा समझा? Yes. Yes. तो वी आर हैविंग अ सिलेंड्रिकल कंटेनर. उस सिलेंड्रिकल कंटेनर के पीछे मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है. इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर मैंने 1 मोल ऑफ गैस को इंट्रोड्यूस किया है. इसके अंदर 1 मोल ऑफ गैस है. अब मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक एन आइडियल कंडीशन कि पिस्टन जो मैंने लगाया है, ये पिस्टन और ये जो वॉल है ना बच्चों, पिस्टन और ये सिलेंडर का वॉल, ये दोनों के बीच में देयर इज नो फ्रिक्शन.
मतलब इट्स अ फ्रिक्शनलेस। इसका मतलब ये कि मैं जो भी काम करूंगी मेरा पिस्टन इजीली मूव करेगा, मेरी कोई भी एनर्जी फ्रिक्शन में वेस्ट नहीं होगी। सी इट्स एन आइडियल कंडीशन, ऐसा रियल में नहीं होता। ओके, रियल में कोई चीज विदाउट फ्रिक्शन नहीं होती। But here we are simply considering for our convenience that we are taking a cylindrical container. Cylindrical container के अंदर मैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंसिडर कर रही हूँ और मैंने वो सिलेंड्रिकल कंटेनर में एक पिस्टन लगाया हुआ है और वो पिस्टन जो है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब मेरी कोई भी एनर्जी फ्रिक्शन में वेस्ट नहीं होने वाली है। यहाँ तक सबको क्लियर है व्हाट आई सेड? Yes. 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 अच्छा, एक और बात मुझे बोलनी थी कि व्हेन यू आर अटेंडिंग द लेक्चर्स, कोई भी सो के लेक्चर अटेंड नहीं करेगा। मैं कभी भी कैमरा ऑन करवाऊंगी। इफ यू आर अटेंडिंग योर लेक्चर एट 7:30 यू हैव टू बी वेरी फ्रेश। मैं कभी भी कैमरा ऑन करवा सकती हूँ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। मैंने ये ऑब्जर्व किया लास्ट लेक्चर में और कुछ ओरल्स में कि आप लोग बहुत मजे में लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जब भी मेरा लेक्चर किसी भी टाइम पे हो, 7:30 बजे हो, 9 बजे हो, वट एवर मे बी द टाइम, यू हैव टू बी वेरी फ्रेश एट दैट टाइम। आपको एकदम फ्रेशली बैठना है। मैं कभी भी बोलूंगी कैमरा ऑन करो और मुझे दिखाओ तुम लोग क्या कर रहे हो। जो ये सो के खा के पी के लेक्चर अटेंड कर रहे हो वो थोड़ा सा बंद करो। आई कैन मेक यू एक्टिव एनी टाइम। किसी भी टाइम पे मैं बोलूंगी नोट्स निकालो और मैं अब भी नोट्स लिखवा रही हूँ। एंड आई विल मेक यू अलाउड टू स्विच ऑन योर कैमरास। अगर कैमरा स्विच ऑन नहीं है आप एब्सेंट कंसिडर हो जाओगे। सो के खा के पी के लेक्चर अटेंड करने का नहीं मेरा, ठीक है? सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट आई सेड, व्हाट आर द कंडीशंस आई हैव टेकन। कितना मोल ऑफ गैस ले रही हूँ मैं? One How much more. I'm taking? One mole of ideal. मैं कौन सा गैस ले रही हूँ? आइडियल गैस ले रही हूँ? Ideal. Yes. आइडियल गैस। एंड देन आई एम टेकिंग अ सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसके अंदर मैंने पिस्टन लगाया है एंड दैट पिस्टन इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। Frictionless piston. ठीक है? आर यू क्लियर टिल दिस मच? Yes. 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 Okay. Now, when this condition is followed, आगे बढ़ते हैं जरा. Now let P be the pressure, V be the volume, and T be the temperature of the gas. ये मैंने डिफाइन कर दिया कि P से मैं प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, V से वॉल्यूम को और T से टेम्परेचर ऑफ द गैस को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. Now what I am going to do, of course मुझे CP और CV चाहिए, राइट? अभी हमने पीछे देखा था कि CP और CV कैसे हम ला सकते हैं. तो what I am going to do, I am going to heat my cylinder. मैं वो गैस को हीट करने वाली हूँ and I am trying to heat that at constant volume condition. ठीक है, मैं मेरे सिलेंडर को हीट करने वाली हूँ. I am going to heat it at constant volume condition. यहाँ तक सबको क्लियर है मैं क्या कर रही हूँ? What I am trying to do? Yes. 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 I am going to heat my container at constant volume. Now, जब मैंने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो वो जो भी मेरा सिलेंड्रिकल कंटेनर है, सिंस मैंने उसको उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है, मैं उसके वॉल्यूम में उस पिस्टन को मूव भी होने नहीं दे रही किसी रीजन से. मैंने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है तो इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंटिन्यूसली हीट मिल रहा है. हीट मिलने की वजह से इनके अंदर की जो टोटल एनर्जी है ना बच्चों, द टोटल इंटरनल एनर्जी वो क्या होगी? सिंपल सा फंडा है, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी उनकी? Increase होगी. एग्जैक्टली. सो इनकी टोटल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू थर्मोडायनेमिक्स. ये चैप्टर हम नेक्स्ट केटीजी के बाद हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विच इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरीके से हीट के बारे में डिस्कशन करता है. देयर इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इट सेज. बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी फिलहाल, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. आपका थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो भी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो भी चेंज इन हीट हो रहा है वो दो चीजों के लिए यूज होता है. इट इज यूज फॉर टू पर्पसेस. फर्स्ट, फॉर चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी du, और then it is used for work done, and work done is given by the formula PdV. फिर से समझो मैं क्या बोल रही हूँ. आप जो भी इंटरनल
जो भी आप हीट प्रोवाइड करते हो, जो भी आप हीट चेंज करते हो, वो दो फिनोमिना के लिए यूज होता है। ये आपका थर्मोडायनेमिक का बहुत ही ज्यादा गवर्निंग लॉ है। इससे आपके सारे इंजन्स काम करते हैं, सारे इंजन्स का वर्किंग इसी लॉ से समझ में आता है कि जब भी आप हीट प्रोवाइड करते हो बच्चों, व्हेनेवर यू प्रोवाइड हीट और व्हेनेवर यू प्रोवाइड एनर्जी, वो हमेशा दो चीजों के लिए यूज होती है। पहला, वो अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और बचे हुए हीट से वो वर्क डन करती है। कुछ समझ में आ रहा है? और वर्क डन का फॉर्मूला इज गिवन बाय PdV, where P is the pressure, dV is the change in volume. समझ में आ रहा है what I'm saying? मैम Yes. वर्क डन कैसे होगी? वर्क डन नहीं समझा? वर्क डन का फॉर्मूला इज PdV. नहीं। इसको मैंने कहा ना, मैं इसके बारे में डिटेल स्टडी में आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगी। सी पहले KTG चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के बाद हुआ करता था, नाउ दे हैव चेंज द सीक्वेंस। तो थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो चीज को कि मैम ऐसा होता है। जब हम थर्मो पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको पूरा डिटेल स्टडी करवाऊंगी कि फर्स्ट लॉ कैसे और कहाँ से आया। ठीक है, फिलहाल सिर्फ आप इतना समझो। सी बच्चों, सिंपल सा फंडा, ये लॉ ना कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लॉ नहीं है कि जो आप समझ नहीं सकते कि नहीं मैम समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। सिंपल सा फंडा, आप मुझे बताओ। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ, हालांकि मुझे नहीं जाना था बट स्टिल आई गिव यू। आप अपने किसी भी एक व्हीकल में, लाइक बाइक ले लो, कार ले लो, जब आप उसके अंदर आप पेट्रोल डालते हो, आपको क्या लगता है सारा पेट्रोल जो है वो आप यूज कर पाते हो क्या? बोलो। No, miss. नो। उसका कुछ अमाउंट, एक बात याद रखो बच्चों, उसका कुछ अमाउंट पहले इंजन को हीट करने में जाता है, फिर Yes. एक बार उसका इंजन रेडी हो गया, फिर उसके बाद वो गाड़ी चलना शुरू करती है। Yes. कभी भी ऑलवेज रिमेम्बर, व्हेनेवर यू गिव द एनर्जी, पहले आपको कभी भी बोलते ना देयर इज अ प्रोवर्ब। प्लीज बच्चों मेरी बातों को ध्यान से समझो, ये सारी चीजें आगे भी यूज आने वाली हैं। तो मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ इसलिए मैं बहुत स्लोली दे रही हूँ कि आपको मैं क्या इंफॉर्मेशन मेरा पहुंचाना चाहती हूँ वो क्लियरली आप तक पहुंचे और वो एग्जाम्पल आप सोच सको। ठीक है, देखो बच्चों, देयर इज अ प्रोवर्ब कि स्टार्टिंग हमेशा टफ होती है। एक बार स्टार्ट हो गई चीज तो फिर उस वो इजिली आगे की तरफ बढ़ जाती है। स्टार्टिंग इज ऑलवेज टफ, मतलब आप अगर पढ़ने भी बैठोगे ना आपको स्टार्टिंग में बहुत इरिटेशन होगा, बट वंस यू आर इन्वॉल्व्ड इनटू इट बहुत आराम से चीजें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? सो Yes. व्हाटएवर ma'am. एनर्जी यू गिव बच्चों, आप अगर समझो आपका एक व्हीकल है, उस व्हीकल में जब आप कोई फ्यूल डालते हो, वो फ्यूल बच्चों पूरी तरीके से गाड़ी चलाने में यूज नहीं होता, उसका बहुत सारा अमाउंट इंजन के हीटिंग में चला जाता है। मतलब वो फ्यूल जब जलता है तो उसका कुछ अमाउंट वो अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज करता है। ऑफ कोर्स आपको पता है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, राइट? इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर Yes. पे डिपेंड करती है। आप कभी इंजन, हालांकि टच मत करना इंजन के, कभी आप पास में भी जाओ, इंजन एकदम गर्म होता है, मतलब Yes. आप जो भी फ्यूल यूज कर रहे हो उसका कुछ अमाउंट उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए यूज किया है। बाकी का बचा हुआ अमाउंट से वो आपकी गाड़ी को रन करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा Yes. मैंने क्या बोला? Yes. थोड़ा बहुत समझ Yes. में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर हो रहा है? सो Yes. ऑल दिस थिंग्स ऑलवेज टेक्स प्लेस। आप जो बोलते हो कि अरे मेरा जो बाइक है उसकी एफिशिएंसी इतनी है, दूसरे लोग बोलते हैं मेरी बाइक की एफिशिएंसी इतनी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, कंपनीज क्या ट्राई कर रही है? कंपनीज ये ट्राई कर रही है कि उनका ज्यादा फ्यूल इंटरनल एनर्जी चेंज करने में वेस्ट ना हो। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझा? Yes. Yes. मैक्सिमम Yes. अमाउंट हम Yes. उससे काम करवा सके, हालांकि आज तक कोई कर नहीं पाया है। 50 से 60% फ्यूल आपका वेस्ट ही होता है, बचे हुए 40% में आप उससे काम करवा पाते हो। मतलब आप जो फ्यूल डालते हो उसका 40 से 50% तो समझ जाओ वेस्ट है, वो सिर्फ आपकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में वो पूरा फ्यूल यूज कर लेता है। और बाकी का बचा हुआ फ्यूल है वो आपका गाड़ी को रन करने के लिए यूज करता है। बट एवरी कंपनी इज ट्राइंग कि वो धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ाए और वो जो इंटरनल एनर्जी में जो फ्यूल वेस्ट हो रहा है, जो इंजन को हीट करने में जो फ्यूल वेस्ट हो रहा है, वो थोड़ा उसका वैल्यू कम कम होता जाए। ये हर कंपनी ट्राई कर रही है, बट स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल बच्चों।
जो भी फ्यूल आप यूज करते हो वो फ्यूल हमेशा दो जगहों के लिए यूज होता है। पहला, सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी, पहले वो अपना इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और फिर बचे हुए फ्यूल से वो काम करके देगा। समझ में आ रहा है बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? Yes, Yes. 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 Yes, ma'am. So even the trains which are running, right? जो ट्रेन्स रन हो रही है ना, वो ट्रेन्स पहले तो देखो कोयले वाली ट्रेन होती थी, तो वो लोग Yes. आपने गदर वगैरह मूवी वगैरह देखा होगा, तो उसमें वो लोग कोयला डालते थे। दे यूज टू गिव दैट कोल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से वो अंदर की तरफ कोयला डालते थे। तो वो कोयले का भी वही था कि कभी भी आपका ट्रेन जब स्टार्ट होता है ना, व्हेन इट स्टार्ट्स इट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब वो स्टार्ट होता है तो कुछ अमाउंट उसका पहले इस सिस्टम को हीट करने में, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने में चला जाता है, फिर बचे हुए अमाउंट से फिर वो ट्रेन को आगे की तरफ पुश करता है। समझ रहे हो बच्चों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? सबको क्लियर हो रहा है Yes. एग्जांपल? Yes. 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 So this is what your first law of thermodynamics states. First law of thermodynamics यही बोलता है, और इसीलिए first law of ये जो thermodynamics के laws है ना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि आप जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, जो भी एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो, वो हमेशा दो फैक्टर्स के लिए यूज होती है। एक, पहली वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, फिर वो वर्क डन करेगा, और वर्क डन इज गिवन बाय द फॉर्मूला पीडीवी। मैम ये कैसे आया, इसके बारे में अभी मैं आपको कोई प्रूफ नहीं दूंगी, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो P इज द प्रेशर एंड dV इज द चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या है? Yes, ma'am. Yes. किसी को कोई Ma'am. ऐसा है कि मैम नहीं मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा आपने जो बोला, कोई भी ऐसा कमेंट है? नहीं मैम आप जो बोल रहे हो आई एम नॉट ओके विद दैट, प्लीज बोलो कि मैम आई एम नॉट ओके विद दैट। आई विल गिव यू सम अदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट। इवन बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी विच कम्स इन योर होम, आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो लेता बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी है पर करता नहीं है पूरा काम। आपका एसी जो है वो लेगा बहुत सारा एनर्जी पर यूज आधा वो अपनी इंटरनल सिस्टम में यूज करेगा और बाकी हुए बचे हुए से आपका काम करके देगा। ये हर जगह का फिनोमेना है, नॉट इवन अ सिंगल प्लेस। इवन जब आप पढ़ते हो आपको ऐसा लगता है, देखो जब आप स्टडी करते हो, लेट्स कम टू द ह्यूमन बीइंग। मैंने हमेशा बोला है कि फिजिक्स कुछ अलग नहीं है, जो हम हमारी रियल लाइफ में करते हैं ना वही है। जब आप बहुत पढ़ाई करते हो, समझो आपने 110% की पढ़ाई की है, आपने बहुत पढ़ाई की, आप एज्यूम कर रहे हो कि मुझे ना 96% आना चाहिए। 96 आता है क्या? टेल मी, आता है क्या 96? No. इट इज ऑलवेज बिलो दैट, No, राइट? ma'am. हाँ लकीली आप कभी ऊपर चले गए तो बात अलग है, बट आप जो भी देते हो उसका आउटकम थोड़ा सा कम ही होता है। अब आप बोल रहे हो कि ओके मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ, मैं यहाँ से दे रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरीके से आपको समझा दूं कि मेरा नॉलेज आप तक पहुंच जाए, बट कहीं ना कहीं आपकी भी तो एफिशिएंसी, आप कितना ले रहे हो वो भी तो मैटर करता है। यहाँ से मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, आपका दिमाग 2 ही एग्जाम्पल पे ध्यान में आया, तो बाकी का 2 एग्जाम्पल तो मेरा वेस्ट हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? तो हम जो भी आउटपुट जो भी हम इनपुट देते हैं उसका हमेशा 2 पार्ट में यूज होता है। एक, उसके पहले स्टार्टिंग में आप एकदम नींद में रहते हो, ओके मानसी मिस का लेक्चर है, थोड़े से जूम्ड रहते हो, बट स्टार्टिंग में आपको क्या होता है, मेरी स्टार्टिंग की जो भी एनर्जी होती है वो आपको रेडी करने में चली जाती है क्योंकि अब सुनना है, ठीक है? फिर बाद में धीरे धीरे वर्क डन होना चालू होता है, आप समझना शुरू करते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस थिंग्स टेक्स प्लेस एवरीवेयर कि जो भी आप दोगे वो 2 चीजों में यूज होगा, एक इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, फिर बचा हुआ काम वर्क डन करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? समझो आपको? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes. Now that work done is given by, एक मिनट बच्चों, that work done is given by the formula PdV। अब एक बात समझो बच्चों, जब भी आप समझो बाहर कोई सामान लेने जा रहे हो, आपको अगर किसी ने बोला अरे इसकी 100% एफिशिएंसी है, आप उसको सामने से बोल सकते हो भाई 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? समझा? अब क्या बोलोगे, जो भी फ्यूल देते हैं हम कितने चीजों में यूज होता है, क्या क्या के लिए यूज होता है बताओ बच्चों? इंटरनल एनर्जी करने के लिए और एनर्जी वर्क एंड वर्क डन। सबको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं समझाओ। आदिति समझा? बड़े से? Yes, ma'am. समझा। ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है ना? हाँ बच्चों, मींस डीयू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है ना? ऑफ कोर्स हर ऑब्जेक्ट के लिए डीयू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कीप इट इन माइंड। एंड ऑफ Yes. कोर्स मोनोएटॉमिक है तो बात अलग होगी डीयू की, अभी हमने पीछे देखा। डायटॉमिक है तो केवीटी का वैल्यू अलग होगा। तो ऑफ कोर्स इट वेरी फ्रॉम
molecule to molecule, but it simply depends on temperature. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Of course it depends on degree of freedom also. It depends on how much kBT whether your molecule is monoatomic, diatomic or whatever be the atomic. अमाउंट ऑफ एटॉमिक पे भी डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ये दो फैक्टर्स आपके डीओ को डिफाइन करते हैं. ठीक है. अब Yes. वॉल्यूम इज सॉरी वर्क डन इज गिवन बाय पीडीवी बच्चों. और अभी हमने देखा कि हमने क्या करके रखा है. व्हाट वी हैव डन, वी हैव वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, राइट. एंड व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, जब कोई चेंज इन द वॉल्यूम है ही नहीं तो मेरा डीवी 0 हो जाएगा. मानते हो बच्चों? Yes. Yes. चेंज इन वॉल्यूम क्या Yes. होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. भाई Yes. फाइनल भी उतना है, इनिशियल भी उतना, हम चेंज ही नहीं होने दे रहे हैं, तो मेरा Zero. डीवी 0 हो जाएगा. तो मतलब मेरा Yes. वर्क डन विल बी व्हाट? Zero. वर्क डन विल बी व्हाट? Zero. 0. और मैं जो भी हीट दे रही हूँ, वॉट एवर हीट आई एम गिविंग, Internal दैट इज energy टोटली change यूज्ड करता फॉर है. चेंज इन Internal इंटरनल Change in एनर्जी. internal energy. यही अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, राइट है? Yes. 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 ठीक है. Yes. Now, since dq is equals to du, that is given by the formula cv dt. अब मैम ये कैसे आया? Don't go ahead with the proof. आपको कुछ चीजें as it is accept करनी पड़ेंगी. Where is this cv? अभी मैंने आपको बताया था cv क्या होता है. What is cv? Specific heated constant volume. Constant volume. Specific heated constant volume. And what is dt? Change in Change temperature. in temperature. Temperature. So your dq is equals to du is equals to cv dt. फिलहाल के लिए एक्सेप्ट कर लो, आगे अगर प्रूफ होगा तो मैं बता दूंगी कि ये कैसे आया. ठीक है. where cv is known as मोलार स्पेसिफिक हीट. अब मैम ये मोलार वर्ड कहाँ से आ गया? हम लोग हम लोग 1 मोल ऑफ गैस के लिए बात कर रहे हैं, राइट? Yes. अब ठीक है, समझाते हैं. मैम यस यस बोलो. वर्क डन और वॉल्यूम का रिलेशन कैसे आया ऊपर? मतलब किसका? वर्क डन आपने पीडीवी लिखा ना, उसके बाद आपने डायरेक्ट उसको वॉल्यूम के साथ कंपेयर किया, तो वो क्यों किया? मैंने अभी तो बताया बच्चा कि वर्क डन इज पीडीवी, और पीडीवी से डीवी 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया, तो ये वाला टर्म पूरा चला गया. सो डीक्यू इज इक्वल्स टू डीयू. दैट्स ऑल. और इसका प्रूफ मैंने बोला आपको कि मैं नहीं दे रही हूँ फिलहाल आपको इसका प्रूफ. इसका प्रूफ आपको थर्मोडायनेमिक्स में है. आई टोल्ड यू दिस. ओके ओके. Yeah, I'm not going ahead with the proof. See, if I'll enter into the proof, I have to go to the thermodynamics. तो हम लोग का एक नया ही चैप्टर शुरू हो जाएगा. So अभी फिलहाल हमको उसका यूज है. That is what I'm saying बच्चों. ये Ma'am. KTG चैप्टर ना. बोलो. मैम आप चेंज इन वॉल्यूम के बाद बताओगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. Okay, listen. See, change in volume is 0. That you are clear, right? यस. Work done is given by P into change in volume. Change in volume Yes. हो ही नहीं रहा है तो work done 0 हो जाएगा, वर्क डन 0. यस. right? So मेरा जो भी DQ मैं दे रही हूँ वो पूरा DU के लिए यूज होगा, right? यस. So dq is equals to du. और du के Yes. लिए this formula is given by cv dt, where cv is known as specific heat and dt is known as change in temperature. इसका प्रूफ भी आपको नहीं है फिलहाल. So you just have to accept it कि okay, dq is equals to du is equals to cv dt. ठीक है? यस. क्लियर हुआ? बड़े से. यस. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. दिस cv, देखो बच्चों, आई अंडरस्टैंड कि चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा टफ है, बट व्हेन वी लर्न समथिंग वी शुड हैव अ पेशेंस इन आवर ब्रेन कि नहीं, थोड़ा आराम से और थोड़ा संभल के समझना है. वैसे आई एम कमिंग टू द पॉइंट जहां पर आपको ये सीवीडीटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि ये कैसे और कहाँ से आया, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों. ठीक है? आई सेड दैट दिस सीवी, इसको मैंने सिंपल स्पेसिफिक हीट नहीं बोला, मैंने इसको क्या बोला? व्हाट आई हैव गिवन द नेम बच्चों, बोलो. Molar Molar specific. specific मोलार heat. स्पेसिफिक हीट. नाउ मैम, अभी तो आप स्पेसिफिक हीट बोल रहे थे या प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोल रहे थे, ये अचानक से मोलार वर्ड यूज करने का क्या मीनिंग? बच्चों, मोलार टर्म तब यूज किया जाता है जब हम 1 मोल या हम मोल्स के टर्म में मास की बात करते हैं. देखो, मास को अलग अलग क्वांटिटीज में मेजर किया जा सकता है, राइट? इट कैन बी मेजर्ड इन केजीज, इट कैन बी मेजर्ड इन ग्राम्स, इट कैन बी मेजर्ड इन मोल्स आल्सो. तो जब आप मोल्स के टर्म में बात करते हो ना बच्चों, व्हेन यू टॉक इन द टर्म्स ऑफ मोल्स, यू से दैट द स्पेसिफिक हीट इज मोलार स्पेसिफिक हीट. आप डिफाइन कैसे करते हो? यू डिफाइन इट इन दिस वे. मोलार स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कैसे किया जाता है?
बच्चों मैं ये सारी चीजें क्यों लेकर चल रही हूँ पता है, ये सब 11th का है, बट मैं क्यों इसको साथ में लेकर चल रही हूँ, आई डू अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस आप 11th में ज्वाइन नहीं कर पाए, सो यू डोंट नो अबाउट इट, ओके। सो मेरा एक ही फंडा है कि मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं पे भी आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जो 11th में थे दैट इज ओके, उनको भी कॉन्सेंट्रेट करना है। जो 11th में नहीं थे बच्चों, आई एम स्पेसिफिकली वर्किंग ऑन यू, मैं आप लोगों के ऊपर भी काम कर रही हूँ कि आप लोगों का 11th मिस ना हो। तो उस चीज के लिए आपको भी ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि whenever I am teaching, whatever I am teaching, first you should ask the doubt. Second, जब मैं कुछ समझा रही हूँ पूरा कंसंट्रेशन रखो, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आपके लिए ये नया है, तो आप चाहोगे कि ओके आई रीड द टेक्स्ट बुक एंड आई कम टू नो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो प्लीज अगर कोई एफर्ट ले रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन वहां पे रखो। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोलार स्पेसिफिक हीट, आई सेड कि जब हम मास को मोल्स में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक हीट होता है उसको हम मोलार स्पेसिफिक हीट के नाम से जानते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, हम लोग वहां पे 1 kg ऑफ बोल रहे थे ना, 1 kg ऑफ सब्सटेंस, याद है? Yes. Yes. Now what I am saying, 1 1 mole of mole. substance, 1 mole. 1 mole of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, this is known as molar specific heat. मतलब जब आप मास 1 मोल में लेना स्टार्ट करते हो, then you say that it is a molar specific heat. Clear हुआ बच्चों what I said? टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आएगा कि केल्विन आएगा? कोई भी चलेगा, मैं दोनों भी अलग है ना? दोनों भी हाँ, अलग है दोनों ना, तो हीट गिवन डिफरेंट रहेगा ना, of course, तो मैम 2 आएगा एक का। but तो I said change in temperature. चेंज इन टेम्परेचर, अगर आप केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल जाके देखो उनका चेंजेस कैसा होता है, जस्ट ऑब्जर्व द चेंजेस इन देम, Yes. दोनों का चेंजेस, आई से चेंज इन टेम्परेचर, वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, राइट? तो आप जाके जरा डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल का 1 डिग्री देखो और 1 केल्विन देखो, दोनों अमाउंट आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। यही तो खासियत है डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में, उनके डिविजन्स एक बराबर चलते हैं। यस याद आ रहा है कुछ? यस केल्विन से केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल दोनों में 100 का ही मार्किंग होता है। मतलब अगर आप Yes, चेंजेस की 100 बात करो and तो केल्विन में बात करो और डिग्री सेल्सियस में बात करो, चेंजेस आप इंटरचेंज कर सकते हो क्योंकि दोनों स्केल हैंड इन हैंड चलते हैं। याद है कुछ? यस मैम। ओके, सो इट कैन बी 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दैट इज ओके, ठीक है। सो the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as molar specific heat. बच्चों क्लियर है ये पार्ट? Yes, Yes. यस Whether you say 1 degree Celsius or whether you say 1 Kelvin, changes जो होता है Kelvin scale और degree Celsius scale में साथ में चलता है. You have to keep this in mind. ठीक है. So let's move ahead. ये सम्स में भी यूज होगा बच्चों, जहां पर भी चेंजेस होगा ना वो केल्विन स्केल या डिग्री सेल्सियस स्केल दोनों हैंड इन हैंड चलता है, वहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है। चेंजेस होगा तो, चेंजेस नहीं है तो फिर आपको वो सिस्टम जैसा भी सम होगा आपको अकॉर्डिंगली उस हिसाब से चेंज करना होगा। बट चेंजेस है तो वेदर दे से 1 डिग्री सेल्सियस चेंज और वेदर दे से 1 केल्विन चेंज, दोनों का डिविजन अमाउंट सेम ही होता है। सो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है, यू विल गेट द सेम वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक सबको क्लियर है व्हाट आई सेड? व्हाट इज 1 मोलर Yes. स्पेसिफिक हीट? मोलर Yes. स्पेसिफिक हीट क्लियर है? कब हम बोलते हैं, कब हम मोलर वर्ड यूज Yes. करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच मास, कितने मास की 1 बात कर मोल। रहे हैं? 1 mole of mass. mole. जो 11 में नहीं थे उनको भी क्लियर हो रहा है मैंने क्या क्या किया? मैं जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन ले रही हूँ, मैंने अभी तक क्या क्या किया जरा देखो। आई सेड आई एम टेकिंग 1 मोल ऑफ गैस इनसाइड अ सिलेंड्रिकल कंटेनर व्हिच इज हैविंग अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। यहाँ तक सबको क्लियर है? नो इश्यू बच्चों, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू माई सेल्फ। Yes, ma'am. उसके बाद वी सेड कि ओके मैंने किसी तरीके से वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है, मैं सिलेंडर को हीट कर रही हूँ,
जब मैं सिलेंडर को हीट कर रही हूँ, जो भी अमाउंट मैं ले रही हूँ वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो रहा है, उसका वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखा कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट मैं देती हूँ वो दो चीजों के लिए यूज होता है, du प्लस pdv। वहां जहां पर मेरा du इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, pdv इज द वर्क डन। सिंस यहाँ पर dv नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा? Zero. 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 तो मेरा जो भी dq है वो पूरी तरीके से du के लिए du. चला जाएगा, DU. एंड दैट इज गिवन बाय cv CVDT. CVDT. cvdt। अच्छा बच्चों, कोई ट्राई करेगा क्या ये दोनों रिलेशन निकाल के देने के लिए मुझे? एनीवन विल ट्राई? ट्राई करके देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। Yes. सोचो इसके बारे में जरा। अगर आपके पास 11 की टेक्स्ट बुक है या कुछ भी है तो गो टू द स्पेसिफिक हिट एंड ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टू। लेट्स हैव अ रिलेशन, ठीक है। सी, हमने बोला ना स्पेसिफिक हीट क्या होता है या मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री 1 degree सेल्सियस। Celsius. यही फॉर्मूला आता है। Yes. Yes. ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला याद आ रहा है? कुछ ऐसा कुछ M किया into है। S into delta T. m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे Yes. हम s को c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम हम Yes. मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी लिख सकती हूँ। Yes. Yes. अगर मैंने m को 1 मोल ले लिया One more match. Q equal to CVDT. तो q Yes, इज इक्वल्स टू Krishna. cvdt हो जाएगा। CVDT. Yes. यही चीज है ना, यही यूज किया ना हमने यहाँ पे। Yes. 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 देख Yes. लो बच्चे, ध्यान से देखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्लोली जाऊंगी, मेरे को भगाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा तो मुझे एंट्रेंस का थियोरी पढ़ाने में और इजी चला जाएगा, तब वहां पर हम थोड़ा और हायर लेवल पढ़ेंगे, थोड़ा सा जेयू अप्रोच करते हुए पढ़ेंगे। ये आपका बेसिक्स चल रहा है फिलहाल, बेसिक का रूट एकदम स्ट्रॉन्ग करो। मेरे को फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं आपको एंट्रेंस पढ़ा रही हूँ तो मेरे को बेसिक पढ़ाना पड़े, नहीं, फिर मैं सीधा जंप करूंगी समथिंग विच इज वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग योर बेसिक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं क्यों बेसिक पे इतना फोकस कर रही हूँ कि मैं एंट्रेंस पढ़ाते वक्त मैं सीधा बोल के आऊंगी भाई रिविजन करके आओ, और मैं सीधा जंप करूंगी टू द हायर लेवल। हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, हम सम्स ज्यादा सॉल्व करेंगे फिर वहां पे। मैं बिल्कुल फिर थियोरी जहां पर मुझे लगता है कि ओके यहाँ पर और ज्यादा थियोरी की जरूरत है, जैसे मीन फ्री पाथ हो गया, ऐसे पॉइंट्स पे मैं थियोरी पढ़ाऊंगी। अदरवाइज मैं पूरा सम डाल दूंगी कि भाई सम करो, मैंने बेसिक बहुत कड़क किया हुआ है तुम्हारा। आई एम जस्ट फिक्सिंग योर रूट। बोल सकते हो अभी मैं तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही हूँ, वर्क डन आपका एंट्रेंस में होगा। ये थर्मोडायनेमिक का लॉ है, राइट? समझ रहे हो ना? मैं ये जो आपके अंदर Yes. नॉलेज डाल रही हूँ, आई एम चेंजिंग योर इंटरनल एनर्जी। मैं आपकी इंटरनल एनर्जी को रेज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो काम कब होगा? काम तब होगा जब हम एंट्रेंस करेंगे, जहां पर आप वर्क डन करोगे। समझ में आ रहा है बड़े से? समझा? Yes. 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 ठीक है। सो ये क्लियर हो रहा है? आपने ये 10th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला पढ़ा है जहां पे स्पेसिफिक हीट, Yes. एक मिनट बच्चों, आपने ये 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है? याद नहीं है तो भी चलेगा। Q इज इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी था एक्चुअली, बट सिंस हम मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वही s को मैंने c के टर्म से रिप्रेजेंट किया है। तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ये सबको याद आ रहा है बच्चों? Yes. सबको क्लियर है? Yes. Yes. ये 4-5 लोगों को छोड़ के बाकी लोग सो रहे हैं। केदार तू है यहाँ पे? Yes, आया ही नहीं है। Who's ma'am? Who? व्हाट अबाउट अदर पीपल? मयूरेश Yes, आया ma'am. है? समझा। क्या समझा इससे? क्या समझा? मैम वो इक्वेशन है हीट का, Q इज इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इधर हमने 1 मोल का मास किया है तो फिर वो 1 हो जाएगा, और स्पेसिफिक हीट CV है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसलिए वो CVDT हो जाएगा। सबको क्लियर है? ठीक है, ये समझ गया कहाँ से आ Yes. गया? dq इज इक्वल्स टू du इज इक्वल्स टू cvdt। आदिति, Yes, देविका, ma'am. सबको क्लियर? खुशी आ रही हो देर? Yes, खुशी हो? ma'am. समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Yes, ma'am. Yes. पक्का? कहीं पर कुछ अटके नहीं हो? नहीं नहीं। ठीक है। व्हाट अबाउट अदर पीपल? शेरॉन, दोनों शेरॉन? Yes, ma'am. ठीक है। सी, मेरे को जिसका नाम याद है मैं उसका नाम ले रही हूँ। मनाली,
समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टीचिंग? Yes. ओके, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, जिसका थोड़े बहुत नाम मुझे याद है, आई एम टेकिंग द नेम्स। सो ऐसा नहीं है कि मैम उन्हीं को पढ़ा रहे हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, ठीक है। सो वी गॉट द प्रूफ दैट CVDT कहाँ से आया। सो DQ इज इक्वल्स टू CVDT। हियर आई एम क्लियर। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये फर्स्ट कंडीशन सबको क्लियर हो गया कि DQ हमारा CVDT होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमारा PdV 0 हो जाता है, DQ DU के बराबर हो जाता है और हमको CVDT की वैल्यू मिल जाती है। अब बच्चों जरा समझो यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये जो मेरा DU है बच्चों, अगर मैं इस DU को, ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर मैं इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ, सी मैं गैस सेम ही ले रही हूँ। तुमको स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट में मोनोएटॉमिक लेना है, मोनोएटॉमिक ले लो, डायटॉमिक लेना है, डायटॉमिक ले लो। आप गैस चेंज नहीं करना है, एक ही गैस के साथ काम करना है फिलहाल। मतलब मेरा पूरा DU, सिंस CB मेरा एक कांस्टेंट गैस के लिए, तो मेरा CV पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करेगा बताओ बच्चों? मेरा CV पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। मतलब अब मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ बच्चों। अब मैं बोल रही हूँ कि आई एम हीटिंग द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे आ गया, मतलब अब हम किस में इंटरेस्टेड है? CP में इंटरेस्टेड है, समझ रहे हो बच्चों? यस। मेयर्स रिलेशन निकाल रहा है तो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। यही तो फंडा हमको प्रूव करना है। CV के बारे में हमको ऊपर कुछ पता चल चुका है, अब हमको CP के बारे में कोई इंफॉर्मेशन निकालना है, राइट? सो आई एम डूइंग द एक्सपेरिमेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बच्चों एक बात बताओ कि जब अगर मैं हीट करके, किसी तरीके से हीट करके मैं टेम्परेचर वही ले आऊं, वही चेंज इन टेम्परेचर करूं जो मैंने ऊपर किया था, आपको नहीं लगता बच्चों यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगी? क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो एक ही चीज पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो वापस मैं उसी टेम्परेचर पे लेकर आ रही हूँ जो टेम्परेचर मेरा पहले वाले एक्सपेरिमेंट में था। दोनों का इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगा, समझ रहे हो? रिपीट करो ना। What I am saying, सुनो। I said कि just look at the equation. CV is a constant value, ठीक है? For a gas, CV constant value होती है। मतलब मेरा इंटरनल एनर्जी ये पूरी तरीके से बच्चे किस पे डिपेंड करता है? On what factor? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर। अब मैंने एक्सपेरिमेंट को चेंज किया है, पहले मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, अब मैं कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, पर वापस मैं उसी टेम्परेचर पे आ रही हूँ। अगेन आई एम कमिंग टू दैट टेम्परेचर ओनली। सो मेरा इंटरनल एनर्जी वापस पुराने जैसा ही हो जाएगा, वैल्यू उसकी वही हो जाएगी जो पहले थी। यस। समझ रहे हो? समझा? यस मैम। पर इधर वॉल्यूम चेंज करने के लिए भी यूज होगा। एग्जैक्टली, तो मेरा हीट ज्यादा लगेगा, बस यही डिफरेंस होने वाला है। मैं जो हीट दूंगी, मेरे को किसी भी तरीके से इंटरनल एनर्जी, मैं जब उस टेम्परेचर पे आ रही हूँ, जब मैं उस टेम्परेचर पे रीच कर रही हूँ, तो मेरा इंटरनल एनर्जी सेम है। बट मैंने ये थोड़ी बोला कि जो हीट लगेगा वो सेम ही लगेगा दोनों के लिए, ये बोला मैंने? No. बच्चों आप समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है। आई सेड इंटरनल एनर्जी सेम है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रही हूँ। ऑफकोर्स मेरे को हीट ज्यादा देना पड़ेगा। इस पहले मैं हीट दे रही थी, वो सीधा DT पे आके रुक रहा था। अब मैं हीट दे रही हूँ, अब यहाँ पे मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। अगर मुझे DT पे आना है तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी, यस। क्योंकि मेरा कुछ अमाउंट PdV में वेस्ट होगा। तो जो भी अमाउंट PdV में वेस्ट होगा वो हो, तो मुझे Q का अमाउंट ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी मैं इसको इसके बराबर बना सकती हूँ। कुछ समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैम ठीक है, मैं वापस फिर से समझा दूं, रुको। व्हाट आई सेड, देखो ये CP/CV वाला कंडीशन आ चुका है पूरी तरीके से। लेट्स टेक द कंटेनर्स। दिस वाज CV, जो भी हीट कर रही हूँ DT अमाउंट तक पहुंचने के लिए वो सारा हीट यूज हो रहा है, ढक के रखा है, ठीक है? अब मेरा यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे भी मेरे को DT अमाउंट पे ही जाना है, ठीक है? बट ये खुला हुआ है, दिस इज एट CP कंडीशन। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों कि हीट का अमाउंट तो अब सेम नहीं रह जाएगा ना। मैं जा DT पे रही हूँ, पर मैं सीधा जैसे यहाँ पर DT पे चली गई थी, यहाँ पे चली जाऊंगी क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट में? समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ पर मुझे हीट का अमाउंट क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हीट?
बढ़ाना पड़ेगा। To increase. समझ में आ रहा है what I'm saying? Yes. समझा? Yes, yes. So let's try to write the heat here. So उस heat को मैं dq2 से रिप्रेजेंट करती हूँ. Law of thermodynamics. जो भी अमाउंट ऑफ हीट मैं दे रही हूँ, इट विल बी यूज्ड फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पीडीवी, और यहाँ पे वर्क डन होगा बच्चों, यहाँ पे वर्क डन होने वाला है। ये पूरा मिला के, ये टोटल मिलाकर आपका ये इक्वेशन बन जाता है सीपीडीटी। ये पूरा, वहां पर सिर्फ यही था सीपीडीटी, यहाँ पर ये पूरा होगा सीपीडीटी। समझ रहे हो बच्चों बड़े से? Yes. Yes. और Yes. अभी हमने ऊपर देखा था कि डी यू क्या होता है, डी यू किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ सीवीडीटी पे। Temperature. Yes, temperature. डी यू और सीवीडीटी, राइट? यही था ना डी यू? Yes. ये डी यू। Yes. सो डी क्यू टू इज इक्वल्स टू सीवीडीटी प्लस पीडीवी इज इक्वल्स टू, ये टोटल अमाउंट अभी हमने देखा, इट इज सीपीडीटी। CPDT. Yes. मैं वापस से बच्चों मैं रिवाइज करूंगी, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, ऑलरेडी आवर टाइम हैज पास्ड। सो यहाँ पे वी हैव रिच्ड टिल दिस पॉइंट। अब इसको जरा ये साइड भेज देते हैं या इसको यहाँ ले आते हैं, व्हाटएवर यू कैन डू, नो इशू। सो ये हमारा हो जाएगा पीडीवी इज इक्वल्स टू सीपीडीटी, सॉरी, PdV is equals to CPDT minus CVDT. ये क्लियर हुआ? Yes. 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 So next what we can do, DT कॉमन कर देते हैं। मैं वापस से ये समझाऊंगी, डोंट वरी, सिर्फ ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो फिलहाल। So CP minus CV, dt कैंसिल नहीं होगा? क्यों कैंसिल होगा? ये सेट कौन सा dt है जो आप कैंसिल कर रहे हो? dt कॉमन होगा ना, दोनों में से dt कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हुआ? Yes, yes. ओके, नाउ PV इज इक्वल्स टू nRT पढ़ा था, Yes. Yes. n इज 1 मोल, सो PV इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा। RT. Yes. अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, PDV RDT. is equals to RDT, RDT. Yes. I'll substitute here RDT. RDT is equals to CP minus CV into DT. DT got cancelled. Cancel. Yes. CP minus CV is equals to R. Equals to This is R. cancelled. मैं वापस समझा रही हूँ ये सारी चीजें एक शॉर्ट में, ध्यान से कंसंट्रेट करो। नेक्स्ट टाइम इसका रिवीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई डू इट 2 एक्सपेरिमेंट्स हियर, मैंने 2 एक्सपेरिमेंट्स किया है। बहुत फास्ट जा रही हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, तो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट टाइम वापस रिवीजन लूंगी तो थोड़ा स्लोली समझा दूंगी। हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किया। पहला एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, दूसरा एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट प्रेशर पे किया। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने ये देखा कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यूज कर रहे हैं, जहां पर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है जो भी हीट आप देते हो 2 चीजों में यूज होता है, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन। सिंस वॉल्यूम 0 है, कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है, वर्क डन 0 हो गया, इंटरनल एनर्जी DQ के अमाउंट की हो गई। मतलब जो भी आप DQ दोगे वो पूरा इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाएगा। एंड दैट इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय CVDT। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट Yes. मैंने कहा कि अगर आप इस इंटरनल एनर्जी को ध्यान से देखो, if you look at this internal energy, CV is a constant value, मेरा पूरा internal energy इस DT पे डिपेंड करता है। Are you understanding what I'm trying to say? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. मतलब अगर मैं Yes. किसी तरीके से सेम टेम्परेचर पे दूसरे एक्सपेरिमेंट में आऊँ तो वापस मेरा इंटरनल एनर्जी का वैल्यू सेम हो जाएगा, क्योंकि मेरे इंटरनल एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से मतलब है। आप कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हो उससे मतलब है उसको। मतलब मैम नेक्स्ट टाइम जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम लोग उस टेम्परेचर पे जाएंगे तो हमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स तुमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट में काम नहीं होने वाला। मतलब आप चाह रहे हो कि इतना इंटरनल एनर्जी हो, बट आपको पता है कि आप हीट दोगे तो इतना इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट वर्क डन में वेस्ट होगा। समझ रहे हो व्हाट आई सेड? समझा? Yes. सो Yes. हमको ये पता चला यहाँ से कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम
हमारा इस टेम्परेचर पे कितना इंटरनल एनर्जी होता है, ये रिलेशन हमने यहाँ से निकाल लिया। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा? Yes. समझा Yes. बच्चों? Yes. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट किया। कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब यहाँ पर वर्क डन 0 नहीं होगा, बट हमारा एक सिंपल फंडा है, हमको एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर सेम टेम्परेचर पे जाना है जो हम वॉल्यूम वाले पे गए थे, कि हमारा इंटरनल एनर्जी का वैल्यू सेम हो जाए। ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट में काम नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे को इंटरनल एनर्जी सेम रखनी है। सो अगेन यू विल कम टू द फॉर्मूला dq2। देखो यहाँ पे सिर्फ dq नहीं लिखा मैंने, dq2 लिखा, क्योंकि अब ये नया अमाउंट ऑफ हीट है। dq2 इज इक्वल टू du प्लस pdv। ये पूरा जो है ये cpdt को रिप्रेजेंट करता है। इसके प्रूफ पे अब मैं वापस नहीं आ रही हूँ। du प्लस pdv ये पूरा cpdt को रिप्रेजेंट करता है। cp is molar specific heat at constant pressure, dt is the change in Change in temperature। temperature. तो ये पूरा du प्लस pdv ये cpdt को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एम नॉट कमिंग टू द प्रूफ ऑफ cpdt। कैसे आया, मैं अभी फिलहाल इसके प्रूफ पे नहीं आ रही हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको रहा तो मैं सिखाऊंगी, अदरवाइज हम एंट्रेंस में सीखेंगे कि सी प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। ये आपको दिमाग में रखना है, फिलहाल प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। सो du प्लस pdv ये पूरा जो है ये cpdt को रिप्रेजेंट करता है। और अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारा du क्या होता है, हमारा du क्या होता है, CVDT. डू यू रिमेम्बर दिस? हम क्या करेंगे इस du की जगह पे, मैं आपको यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, अगर आप सेम टेम्परेचर पे जा रहे हो तो आपका du का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो पहले एक्सपेरिमेंट में था वही वैल्यू आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि du को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। अगर आपका गैस सेम है तो du उस किसी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करो सेम टेम्परेचर पे सेम du का अमाउंट वो दिखाएगा। सो I substituted CVDT over here. dq2 is equals to CVDT plus PdV is equals to CPDT. मैंने CVDT को ये साइड भेज दिया, PdV is equals to CPDT minus CVDT. नेक्स्ट मैंने कहा कि CP दोनों में से dt कॉमन करते हैं, PdV is equals to CP minus CV into dt. PV is equals to nRT, ideal gas equation. N is equals to 1 mole ले रहे हैं, so I got PV is equals to RT. अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव लूं so it will be PdV is equals to RDT. अब PdV की जगह पे हम RDT सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, dt got cancelled, you got CP minus CV is equals to R. Are you clear till this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so मतलब अगर आपको किसी ने ये क्वेश्चन किया कि भाई मैंने बहुत सारा काम किया और मैं एक टेम्परेचर पे आया, उस टेम्परेचर पे मेरी इंटरनल एनर्जी, और मैंने बहुत कम काम किया और वापस उसी टेम्परेचर पे किसी तरीके से आया, तो उस टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी दोनों टाइम पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? Same सेम होगा. क्योंकि आप बोलोगे कि इंटरनल एनर्जी अगर गैस सेम है तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? Change in temperature. इट डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर और टेम्परेचर वैल्यू। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा? Yes. Yes. So this is where your Mayer's relation got proved. मैं आपको PDF भेज दूंगी। We'll stop here. Already we have crossed our time by 10 minutes. So next time इसका short revision लेकर फिर हम आगे की तरफ पढ़ेंगे।